Hey guys. Okay, just trying to find a bright spot. Okay, this should do. Hi guys, what's up? Sorry I'm late. Let me get this chair up. It's getting dark already. And obviously one of the best formulas to sleep early is to not use lights. So as you can see indoors, it's already dark now. I've got a little bit of light just so that I don't crash into things. But otherwise, yeah, no lights. So yeah, if you don't use lights, people at my home don't use lights almost at all. Yeah, when we go to the bathroom, we don't use lights because obviously you can see everything. Taps shine, ceramic shines, everything shines. So yeah, if you don't use lights after 7 or in the evening, then it's easier to fall asleep at night. Many students who are trying to get up in the morning, they find it hard to they don't sleep on time, and that's why they find it hard to wake up in the morning. So yeah, not using lights really helps. Okay, so yeah, should we give it another minute or so while I think all of them are here, 8 of them are here, I think. Yeah, there were just 8 of you, so I think that's okay. Ta-da. Okay. Yeah. Like we said, the agenda is threefold. First is many students want to know, hi, good evening Prashu, good evening buddy, always good to see you. I don't know if Rashi is here as well. Is Rashi here? I think Rashi should be joining us now. Zeel is there. Where's Rashi? I hope she'll be here with us in a minute. Okay. So I'm so proud of her. She just messaged that she stopped using Instagram. I'm so proud of her. So that's okay. So she just called to tell me that today her day was amazing. She woke up at 4 obviously. And she had just a perfect day. So that's what, that you feel like you're in charge of things. So little things like that, like your diet, like your wake up time, your sleep time, once you start controlling these little things, you feel super motivated, you feel super able to do things. So best thing to do is to start with that you start taking charge of these little things. So if motivation is an issue for you, many students have said that whether they should have taken CAT or not. A lot of students are feeling that because during lockdown nothing's happening, nothing seems to be moving, and you really don't, because you have a lot of screen time. So what is happening is that our bodies are supposed to function in a certain way, our minds are supposed to function in a certain way. We are supposed to do some things with our lives, with our bodies, with our minds, and in the process we use more food and we get more sleep and we get more satisfaction, we achieve more things, blah blah blah. If you end up sitting in front of a screen a lot of the time, you are not basically using much energy, you are not active, simply put, which you already know. So if you are not active, you don't feel hungry enough, if you don't eat enough, you don't feel motivated enough, and then the circle keeps going. So for all those people who have suddenly started questioning things, whether CAT is right for them or not, whether they'll be able to do it or not, you should really speak to these guys, Prashu and Rashi. They're really doing wonders. For last 3 days they've been struggling. Prashu, I think you are also here, so let me try and bring Prashu in if I can. Wait. Prashu, how do I add you? How do I invite you? I can't see you in that invite list. Wait. Prashu, okay. I've sent him an invite, let's see. Sent, okay. Yeah, so you should join in. So motivation wise, yeah, I mean it's a simple challenge. Either you guys can go insane trying to understand the theory, the whole spirituality shebang and the whole psychology shebang, and how it's all in your mind and how willpower it's all what it's about and blah blah blah. So either you can do all of those things, or simple, you can just experiment, you can just try it out. So for a week, you can start with a week's challenge, you can start with a 3-day challenge, that you have to be in your room at 7, you can't go out of your room after 7.
you have to not use lights. You have to start reading something or the other. You have to be in your bed at 7:30. Once you are in your bed, it doesn't matter what time you fall asleep. Sleep will come. All you have to do is read, and you are only allowed to read books, and you are only allowed to read articles. So you can read articles from aldaily.com, which is arts and letters daily, arts and letters daily.com. So aldaily.com. So you read articles from there on your mobile phone. So when you fall asleep, your mobile phone switches off automatically. If you read from a book, you have to keep the lights on. So you can either read a book or you can read articles, and book can be fiction or non-fiction. That's perfectly alright. So you have to read books or article, or you can be reading a magazine. If you have a good magazine at home like Reader's Digest or something, you can be reading that magazine also. And you have to fall asleep. Doesn't matter what time you fall asleep. You have to be up at 4, and once you are up at 4, you try to drink a liter of water, and then the schedule is in the WhatsApp group. You've seen the schedule in the WhatsApp group. Your day is on basically. All day you eat when you are hungry. Whenever you are eating, you have to be listening to the radio or reading something. So whenever you are, I don't know, taking a dump in the toilet, brushing your teeth, all the everyday things like waking up, like eating, like sleeping, like toileting, these everyday things, the idea is to take a complete control on these everyday things. And once you do that, you suddenly feel powerful, because you know what, you shit every single day, you eat every single day, you brush your teeth, I hope every single day. I try to. So yeah, because you are doing these things every day and you are taking charge of these things, you are making changes at a very molecular level, at a very micro level. You start feeling much more powerful, you start feeling much more able to do anything. That's how I managed to do it, frankly speaking. I started changing little things. That काम पे जाना है तो कार में नहीं जाना है, साइकिल पे जाना है, क्योंकि काम पे तो रोज जाना ही है. तो जो चीज़ रोज करते हैं उसको अलग तरह से. Don't do different things. Start doing things differently. So I would request all of you to join that program. If you can't do a 4 a.m. program, do a 6 a.m. program. If you think that सर मेरे को रात को लेक्चर होता है, ये होता है, वो होता है, तो लेक्चर को रिकॉर्डेड बाद में सुनो, या तो लेक्चर में पार्टिसिपेट करो, और कैसे भी करके अगर तुम 9 बजे सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, तो भी 4 बजे उठ जाओ एक बार, और फिर सुबह वॉक करके जब वापस आते हो तब आधा 1 घंटा सो जाना. दोपहर के बाद तो मत सोना. अगर दोपहर के बाद तुम सोए तो फिर रात को बहुत लेट होगा सोने में, फिर सुबह उठा नहीं जाएगा, एंड देन योर रूटीन गोज डाउन द ड्रेन. So yeah, what I would say is that take charge of everyday things. If it's your food, start eating slightly differently. If it's your breathing, breathe a little more consciously. If you are reading, start reading more critically. And this is taking us to the second point of how to improve your English. Because आपने देखा होगा reading comprehension में they have passages where they ask you the main idea of the passage, paragraph. They ask you what is to be inferred from the passage, from the paragraph. Generally speaking, in life, whether you are applying on Shaadi.com, whether you are applying for a job, whatever you're doing, whether you're applying for a passport or whether you are making a complaint, making a right to information thing, in every single case in your life, you will have to understand and analyze a given situation, and the situation will always be given to you in language. So either somebody will tell you, or somebody will give you a manual, or if somebody will send you an email, but somebody will use some language to communicate something to you, and you have to understand it, and you have to analyze it. These are the two things. So let me give you an example. So when you are reading something, you have to start not only understanding it, but you have to start analyzing it. कि ये किसने लिखा, क्यों लिखा, किस ऑडियंस के लिए लिखा, ये यंग लोगों के लिए लिखा गया है या बुढ़े लोगों के लिए लिखा गया है, ये टेक्निकल ऑडियंस के लिए लिखा गया है या जनरल पब्लिक के लिए लिखा गया है, ये इनफॉर्मली लिखा गया है या फॉर्मली लिखा गया है, etc, 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 etc. So try to be critically analytical about it. Then when you're listening to podcasts, which you should be doing when you're brushing your teeth, when you're eating your meals, constantly be listening. Why? Well, because you have English in your cat. B, you hear so much bad English. Think about how many teachers speak correct English. Think about how many friends speak correct English. But real situations in life, like your boss might speak correct English, your I don't know, a government, a website that you read, an instruction manual. If you buy any new piece of technology, you buy a new washing machine, you buy a new Bluetooth speaker, you buy a new headset, whatever, the instruction manual will all be in English. So first of all, everything which is useful and good quality will be in English.
Secondly, we hear so much bad English around us that if we are not balancing it with good English, your English will ultimately be very bad. It will keep getting bad, and right now it might be bad, it must be bad. Everyday things. इसलिए मैंने आप लोग को सबको वो एक छोटा सा पीस मुझे राइटिंग में भेजने को बोला है. माई फेवरेट पार्ट इन माई हाउस, और माई फेवरेट एरिया इन माई हाउस, माई फेवरेट स्पॉट इन माई हाउस. कि ये एक बहुत बेसिक चीज़ है. आप एक घर है, हाँ है, आप घर में रहते हो, हाँ रहते हैं. आपका कोई फेवरेट स्पॉट है, कोई बालकनी है, कोई किचन है, हाँ है. बस उसके बारे में लिख के भेजना है 5-10 sentences. And see how many of you can write 5 correct sentences, 1 paragraph. How many of you can write 1 correct paragraph? And my guess will be none of you. But we will find out. So that's why I'm asking you to share it. सब चीज़ experiment करके देख सकते हैं ना, कोई problem है ही नहीं. And I'm very lucky that I'm working with young people who are open-minded, who are open to experimentation, and who are open to accepting what they are seeing. अगर दिख रहा है तो होना ही चाहिए. So that's cool. So yeah, you need to be doing a lot of English reading and listening till it starts making sense, and till that English becomes your English. कि आप जो English use कर रहे हो वो उस कैलिबर का हो जाता है जो आप BBC पे सुन रहे हो या जो आप इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो वैसा इंग्लिश आपका हो जाएगा. तो फिर आपके जो एग्ज़ाम है, चाहे आपका कैट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका शादी.com का एप्लीकेशन हो, चाहे आपका पासपोर्ट का एप्लीकेशन हो, चाहे आपको बैंक को कंप्लेन लिखना हो कि मेरा हैकिंग हो गया और 30,000 रुपये गायब हो गए, या वो आपको जो जवाब देते हैं उनके लॉयर्स, वो आपको जवाब समझना हो, आपको बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन एंड एनालिटिकल एबिलिटी बिल्ड करनी है, तो वही करना पड़ेगा. बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा सुनना पड़ेगा, और उसको कॉन्स्टेंटली क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा. इसका ऑथर कौन होगा, इसका ऑथर बुढ़ा होगा कि जवान होगा, ये क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, ये ऑथर खुद रिलीजियस होगा या नहीं, ये ऑथर खुद मोटा होगा या दुबला होगा, पता नहीं चलने वाला आपको ऑब्वियसली. बट इस तरह से सोचना शुरू करोगे तो जब आपको लाइफ में कभी भी आपको कोई भी कुछ बोलता है या तो कुछ लिख के देता है, चाहे वो कैट एग्जाम हो या लाइफ में कुछ भी हो, या आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसका आप एनुअल जनरल मीटिंग रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, शेयर होल्डर्स रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में आपके सामने लैंग्वेज आया. आज मेरे साथ क्या हो रहा है, यू नो, समबडी कॉन्टैक्ट्स मी दैट, ओ आई हैव गॉट न्यूरोमायलाइटिस ऑप्टिका. Wow, I'm not a doctor. I go and read about it all. I read about the disease, I read about the symptoms, I read about all the medications, I read about all the different generations of medications available, and it all makes sense. Of course, I need to use a dictionary, but more than that, it all makes sense. अगर मेरे को 10 पेज का पढ़ना पड़े कि भाई न्यूरोमायलाइटिस ऑप्टिका क्या है, या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विथ यूवाइटिस क्या है, या कीटो डाइट क्या है, या पेलियो ऑटो इम्यून डाइट क्या है, या ये क्या है, या वो क्या है, या whatever. Like I met a cyclist yesterday and he was talking to me about we should wear the correct shorts वरना उससे chaffing हो जाता है, and we should have the correct gloves otherwise उससे cobbled pathways पे repeat stress injury होता है. So you know there is technology everywhere. There are experts who are ready to talk to you for free. There is Wikipedia which is available to you for free. There is CAT exam where you can score 100 marks. There is your college where you can impress everybody with the best presentation, best speech, best everything. Everything is available to you for free. Only thing you need is the ability to clearly understand and analyze spoken or written content from a diverse set of topics. If I'm correct, yes, that's all you want. तो चाहे कोई भी टॉपिक हो, आपको चाहे लिख के या बोल के बताया जाए, आप उसको समझ भी पाए और उसको एनालाइज भी कर पाए. सो देन इट्स एन आर्ट, लैंग्वेज इज एन आर्ट, एंड टू डेवलप इट यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट आर्ट. सो आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया होगा, अगर नहीं पता तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ और आप वो रूटीन देख लो. उस रूटीन में आप देखोगे देयर इज अ लॉट ऑफ लिसनिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रीडिंग, प्लस देयर इज स्टडीज, प्लस देयर इज कॉलेज. सो ब्रॉडली स्पीकिंग उसमें 7 घंटे कॉलेज के रखे गए. सो 8 से 3 का या 9 से 3 का या 8 से 3:30 का. सो आपको 7 से 7.5 घंटे आपको कॉलेज के लिए दिए गए, आपको 7.5 घंटे सोने के लिए दिए गए, और बाकी के 9 घंटों में से 1 घंटा आपको स्पेयर दिया गया है, और बाकी के आपके जो 8 घंटे हैं वो पूरे के पूरे कमिट हो जाते हैं. उसमें से 4 घंटा आपको कैट की पढ़ाई करनी है और 4 घंटा आपको खुद इम्प्रूव होना है. यू हैव टू इम्प्रूव योर जीके, यू हैव टू इम्प्रूव योर एक्सेंट, योर प्रोनाउंसिएशन, योर वोकैबुलरी, योर पर्सनैलिटी, योर नॉलेज, योर स्पिरिट, योर माइंड, योर बॉडी, योर फैमिली, योर सोसाइटी, योर प्लानट.
whatever तुम्हारा करना है. So उसके लिए वो तुमको दिन का 4 घंटे करना है, और वो 4 घंटे तुम वॉक करते करते भी कर सकते हो, खाते हुए कर सकते हो, ब्रश करते हुए कर सकते हो. तुमको करना क्या है, पॉडकास्ट सुनना है और रीडिंग करना है. रीडिंग सोते टाइम करना है, और पॉडकास्ट जो सुनना है वो सुबह के टाइम जब तुम वॉक कर रहे हो उस टाइम पे, वो पॉडकास्ट आफ्टरनून को, और BBC वर्ल्ड सर्विस मॉर्निंग में. सो आई होप यू ऑल लुक्ड एट द व्हाट्सएप शेड्यूल. एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट मोटिवेशन? मैंने आपको ज्ञान दे दिया, मैंने आपको रूटीन दे दिया, और मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए प्राशु और राशि के, जो पिछले 3 दिन में ही कांटेक्ट में आया है. सो ऑफकोर्स आई एम श्योर अभी आप लोग में से और एग्जांपल्स ऐसे बनेंगे. सो मोटिवेशन रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस है, देन यू आर वेलकम टू जॉइन मी इन द कॉल. I don't know if Prashu still can't join. Would anybody else like to join and ask any more questions related to motivation or CAT? काफ़ी लोगों ने WhatsApp किया है. I think I have covered all the questions. Is there anything I haven't covered related to motivation और CAT करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Of course करना चाहिए. तुम आगे MBA करो या ना करो, MBA करने के बाद तुम मैनेजर बनो, आर्टिस्ट बनो, गिटारिस्ट बनो, जो करना है करो, लेकिन कैट के प्रिपरेशन में तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी. तुम जिस तरह के फैकल्टी को मिलोगे, जिस तरह के मटेरियल पैसेजेस मिलोगे, आई कैन टेल यू, मतलब डेफिनेटली कैट अटेम्प्ट करना ही चाहिए, प्रिपेयर भी करना ही चाहिए, डेफिनेटली. ओके, यस हर्षु, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. हे ब्रो, व्हाट्स अप? हेलो सर. हाय बड़ी, मेरा भी बाल ऐसे है, टेंशन मत ले. हाँ. अरे सर, वो आप जो लाइव वीडियो कर रहे थे ना, हाँ. आपने उसमें कुछ बोला था कि है ना, वो शेड्यूल आपने कुछ शेयर किया था. तो वो किस पे आपने किया था? व्हाट्सएप ग्रुप पे किया है. अगर तुम ग्रुप में नहीं हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, मैं तुमको ऐड कर देता हूँ ग्रुप में. हाँ, ओके ओके ओके. मैं वही. हाँ, मॉर्निंग में उठने का बहुत सारा रीजन है. एक तो तुमको बर्ड सॉन्ग मिलता है. हम लोग बर्ड्स के बाद इवॉल्व हुए हैं. हम लोग 2.5 लाख साल पुराने हैं. बर्ड्स आर डायनासोर्स, वो 5 करोड़ साल पुराने हैं. हम उनके बाद इवॉल्व हुए, हम उनके बच्चे हैं. सो सुबह सुबह उनका आवाज वगैरह सुन के दिमाग बहुत ही चेंज हो जाता है, एनर्जी फील होती है. दूसरा, सुबह को ठंडा होता है, शांत होता है. तुम जो भी सुन रहे हो लो वॉल्यूम पे भी बहुत सुनाई देता है. तुमको अपने थॉट्स एम्पलीफाई होकर सुनाई देते हैं. तीसरा कि तुम सो के उठे हो, मतलब बहुत सारे रीजन है. नॉइज नहीं होता, हॉर्न नहीं बज रहे होते. सो बहुत सारा है. अगर सुबह आपसे उठा नहीं जाता, अगर आप नाइट पर्सन हो, तो पहले तो आप नाइट पर्सन क्यों हो ये आप ठीक से समझ लो. कोई भी एनिमल देख लो, आप समझ लो, अगर आप इंसान नहीं हो, आप शेर हो. समझ लो यू आर अ लायन इन अ जंगल, और यू आर मंकी लिविंग इन अ फॉरेस्ट. ओके, एक आई डोंट नो, इज निशान नॉट हियर? Join left, doesn't matter. Somil, you have the same question. I think Bhavya, you have the same question. I'll bring any one of you in, doesn't matter. Somil, I'll bring in, okay. Let me turn on the light. Hi, Somil, what's up, bro? Hi sir, how are Long you? time no see. Yeah. Yes How are you? sir. All good? Yeah. Yes So what sir, you are fine. saying is that you are a night person. Yes sir, I am not able to sleep till 2 or 3 at night. I am trying to Perfect. sleep Yep. at Yep. 12, Yep. Yep. You're absolutely but I right. am not When able I to was sleep. your age, I was the same. Almost all of your friends are the same. Almost all of them. First Yes, of all, let me yes tell you. sir. So you are normal, first of all. Secondly, why does this happen? So you look at any animal, whether you look at a monkey, a lion, a human, anyone. Just compare yourself and me. I'm almost 40 years old, and probably you are just over 20 years old, right? Yes sir. Right. So you are 20, I am 40. Who's got more money? You got more money. Correct. Who's got more property? You got. Yeah, I've got a Tata Safari SUV. I've got an Alkapuri penthouse. I've got a garden. Yeah. You know what I'm trying to do? I've got a bicycle. I've got a bike. I've got stuff. Who's got more Yes sir. influence?
Influence you Of when course, we get influenced by you. yeah, I mean, I spoke to the mayor recently. She was supposed to come in my flag off event. I'm on so many newspapers. I'm on so many TV channels. I met so many Yeah, politicians. I met so many gundas. I met so many drug dealers, gun dealers. yeah, heard about that. Uh, Yes, you know what I'm trying to tell you. I know so many other teachers. I know musicians. I know dancers. You know what I'm trying to tell you. I have more contacts than you do. yeah, of Uh, course. so basically, in this world, it's easier for me and it's harder for you. Am I right? Yes, sir. Yeah, I've got discipline. I've got ideas. I've read a lot of books. I've watched a lot of movies. Yeah, I've of met a course. lot Yeah, of people. I've traveled a lot of countries. So basically, तुम्हारे और मेरे बीच में मैं बॉस हूँ. yeah, of course you are. तो जो भी चाहिए, लेट्स से कि अपने दोनों के बीच में कंपटीशन है लड़की के लिए, तो मेरे हाथ में आने का चांस ज्यादा है. अगर हमारे दोनों के बीच में कंपटीशन है नौकरी के लिए, तो मेरे हाथ में आने का चांस ज्यादा है. अगर हमारे बीच में किसी भी चीज के लिए कंपटीशन लग जाए, तो तुम्हें पता है कि वो चीज मेरे पास आने का चांस ज्यादा है. Yeah, Do you agree with this? And even if agree, we were agree, completely monkeys, it agree. would be Yeah, the same. Even if we were lions, even if we were dinosaurs, तुम यंग yeah, हो, हम थोड़े थोड़े से पहुंचे हुए खिलाड़ी है. हमारे भी बाप बैठे ऊपर, लेकिन तुम हमारे एक स्टेप पीछे हो. यू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉजिक. अब yes, sir. हमको ऐसा अच्छा लगता है कि हम दिन में घूमे और रात को सोए. Yeah. सो तुमको क्या करना पड़ेगा? हमें दिन में जगना पड़ेगा, रात को सोना पड़ेगा. नहीं, तुमको ऑपोजिट करना पड़ेगा ना. तुम, क्योंकि रात को हम लोग सोते, दिन में हम लोग जागते हैं, और अगर हम लोग हैं तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला. हाँ, वो भी है. करेक्ट. तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा. तुमको जो भी चाहिए, तुमको शिकार करना है, किसी का भी शिकार हाँ, करना है. तुमको शिकार करना है, किसी भी सेंस में पकड़ो. तुमको घूमना है, तुमको कोई एरिया एक्सप्लोर करना है, तुमको और कुछ नहीं तो सिर्फ टॉयलेट करना है. क्योंकि एनिमल्स में पता है ना, वो लोग टॉयलेट भी करते हैं तो वो टेरिटरी को मार्क करने के लिए करते हैं कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है. तुमको कुछ भी करना है तो तुमको मेरे से compete करना पड़ेगा, या तो मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी, या तो संभाल के करना पड़ेगा कि मैं गुस्सा ना हो जाऊं. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. yes, sir. तो एग्जैक्टली जब हर्षु ने बोला ना कि जब मैं सो रहा होता हूं तब तुम लोग जागते हो. सब पूरे एनिमल किंगडम में यही होता है. इसलिए जब हम इसके पहले हम लोग मंकीज थे, मंकीज के पहले पता नहीं रैट्स थे, रैट्स के पहले क्रोकोडाइल्स थे, क्रोकोडाइल्स के पहले फ्रॉग्स थे, फ्रॉग्स के पहले फिश थे, जो भी थे. इन एवरी केस बूढ़े लोग रात को सोते और दिन में जागते, जवान लोग दिन में सोते और रात को जागते. सिंपल एज दैट. प्लस हम दोनों में से आंखें किसकी ज्यादा शार्प है? शार्प प्रोबेबली मेरी होगी. करेक्ट. आंखें. नाक हाँ, किसका ज्यादा शार्प है? वो भी मेरा होगा. कान किसके ज्यादा शार्प है? वो भी मेरा. करेक्ट. तो तुम रात को घूम सकते हो, मैं नहीं घूम सकता रात को. यू गेट yes, इट? sir. लॉजिक समझ में आ Yes, गया? sir. हाँ, Done? इसलिए तुम या जितने भी लोग रात को जागते हो और दिन को सोते हो, वो लोग सब नॉर्मल हो. अब समझ आ गया? yes, sir. राइट. बट नाउ वी हैव टू लुक एट इट दिस वे कि तुम रहते कहाँ पे हो, जंगल में या शहर में? शहर में. राइट. कितने जानवर चश्मे पहनते हैं? एक. यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. कितने जानवर Yeah. रोज पका हुआ खाते हैं? कितने जानवर दूसरे जानवर का दूध पीते हैं? सिर्फ एक, ह्यूमंस. Yeah. So now you have to decide whether you are an animal or you are a human. If you are an animal, then in young age तुम रात को भटकोगे और दिन में सोओगे, और बड़े होकर दिन में राज करोगे और रात को सोओगे. Or you have to decide that you are human and you have to start changing your animal habits. Simple as that. मैं तो चाहता हूँ सर, मुझे नींद ही ना आए. मतलब 4 घंटे से ज्यादा नींद ही ना आए तो बात ही खलास हो जाए. मैं तो ये सोचता हूँ तो कि मुझे ऐसा 1 तो घंटा नहीं. भी नींद ना आए, क्योंकि मरने के बाद तो सोना ही है. सोते हैं तो वही सब तो टाइम सर. वेस्ट हो जाता है. आई नो. हाँ, बट यार सोना पड़ता है. मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है. तुम्हारी 6-7 घंटे नींद नहीं होगी ना, तो तुमको अगर लेट्स से वॉक करना है, रीड करना है, आर्ग्यू करना है, डिबेट करना है, कोई भी चीज में तुम्हारा दम नहीं लगेगा. तुम्हारे ब्रेन में इनफ ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा. इसलिए यही तो है कि तुम्हारा मन कुछ भी बोले, यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर ह्यूमन. अगर तुम ह्यूमन हो तो तुम हमेशा थियरी समझोगे और फिर प्रैक्टिकल करोगे, ना कि जो मन में आ रहा है वो करते जाओ.
मन में आता है वही तो एनिमल्स करते हैं ना। एनिमल्स और ह्यूमंस में फर्क क्या है? और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब 12 बजे, मैं 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 12 बजे तो वो सो ही सिंपल है। जाऊं अब मतलब। हमने प्रॉब्लम समझ लिया, तुमने प्रॉब्लम समझ लिया ना, अब मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ। हाँ। हम्म। ठीक है। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, देख बहुत ही सिंपल है। पहला चीज क्या करने का कि रात को घर में लाइट्स यूज नहीं करने का। देखिए मेरा घर का अंदर का है सीन, देखा लाइट्स है कोई? नो। लाइट्स क्यों यूज करने का? क्यों करने का? तुमको पता नहीं है कुर्सी टेबल कहाँ पे? क्यों लाइट यूज करने का? सोच तो सही। स्क्रीन यूज नहीं करने का। अभी मैं बाहर बैठा हूं तो मैं लाइट चालू करके बैठा हूं तुम लोग से बात करने के लिए। ये कॉल खत्म होगा, मैं अंदर जाऊंगा तो सब लाइट बंद। सो लाइट्स यूज ही नहीं करने का है, तो एकदम डिम लाइट यूज करने का, या तो मोबाइल का लाइट यूज कर लेने का। सो अंधेरा होता है ना, उसके 2-3 घंटे बाद नींद आती है। तुम अगर 12 बजे तक स्क्रीन पे देख रहे हो, तुम्हारा 2 बजे के बाद पहले नींद ही नहीं आने वाली। सो फर्स्ट रूल, नो लाइट्स। नो लाइट्स। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, 2 घंटे में सोने का है, तो फिर लाइट जला के क्या जागने का है पूरी रात? इसलिए लाइट्स यूज नहीं करने का। पहला चीज समझ में आ गया? नहीं? यस, आया है सर। पर डन, आपने तो सर परफेक्ट। वो भी तो कहा था कि एक मतलब क्लास में आपने कहा था कि तब तक बुक पढ़ो जब तक बुक गिर ना जाए, आप पूरे एग्जॉस्ट करेक्ट। ना हो जाओ। हाँ तो तो वो, फिर और मैं लाइट्स तो मोबाइल में पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल, बुक में पढ़ोगे तो लाइट चालू रहेगी। तो सर आंखों मोबाइल की में दिक्कत पढ़ोगे, फिर। मोबाइल में पढ़ोगे तो बेस्ट है ना, वो ब्राइटनेस आप कम कर सकते हो, एकदम कम कर सकते हो। ब्राइट जितना लाइट कम उतना अच्छा। आप नया रिसर्च अच्छा। पढ़ना, जो पेरेंट्स बोलते थे वो गलत था। जितना लाइट कम उतना अच्छा। सो मोबाइल में आप पूरा ब्राइटनेस कम कर दो, और मोबाइल में ही आप पढ़ते पढ़ते सो जाओ, स्क्रीन अपने आप बंद हो जाएगी। घर डे रूम में लाइट के या तो किसी को, कॉन्ट्रास्ट तो सॉरी, डे लाइट के कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से नहीं होती है सर ब्राइटनेस, तो मतलब सपोज के वो आप अगर चेंज मैं। कर सकते हो ना। हाँ वो भी ऑटो ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाएगी। अगर रूम में अंधेरा है तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, अगर आप बाहर जाओगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। सो आप जैसे ही रूम में अंदर पढ़ते हुए अंधेरे में पढ़ रहे हो तो ब्राइटनेस कम ही हो जाएगी अपने आप। वो दिक्कत नहीं करती। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली एक्चुअली वी हैव इवॉल्व टू सी बेटर इन द डार्क। आप अगर सो रहे हो तो आप जब उठोगे तो आपके आंख में लाइट जाएगी, तो आपको नहीं अच्छा लगता, पता है ना। हाँ सुबह सुबह हाँ उठने हाँ हाँ लगता, हाँ इसलिए उठने के बाद आदमी पड़ा रहता है बेड में, क्योंकि आंख में लाइट लगती है। हाँ लेकिन आप जैसे ही लाइट में से अंधेरे में जाओगे, आपकी आंखें तुरंत रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप अंधेरे में हाँ। से अचानक लाइट में गए तो आपकी आंखें एकदम खींचेगी। So ओके। light is bad for us. Darkness is our natural setting. We have evolved from oceans, and oceans were always dark. We have evolved from deep oceans. Deep oceans were. जब हम इनिशियल बैक्टीरिया वगैरह थे तब तो आंखें थी भी नहीं। सो आईज केम मच लेटर ऑन। या लाइट इज नॉट गुड थिंग। जो लोग कॉन्स्टेंटली ऑफिस में काम करते हैं, कॉन्स्टेंटली आर्टिफिशियल लाइट में काम करते हैं, उनकी आंखें कमजोर होती है। गांव वालों की आंखें बुढ़ापे में भी ठीक रहती है। सो आप जितना आर्टिफिशियल लाइट कम यूज करते हो, और जब भी लाइट होती है तब आप जितना ग्रीन ज्यादा देखते हो, उतना आपकी आंखें स्ट्रांग रहती है। एनीवे, सो हाँ, लाइट कमी होनी चाहिए। कम लाइट अच्छी है, ज्यादा लाइट खराब है। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कि आप रात को रूम में उजाला मत करो, आर्टिफिशियल हाँ लाइट नहीं ओके। करोगे, डन प्लानिट डन डन। कोल भी बर्न नहीं होगा। इट्स गुड फॉर द प्लानिट, गुड फॉर योर कर्मा, पॉजिटिव यस। एनर्जी। डन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, तुमको जो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो तुम में से किसी को अच्छी नहीं लगती, वो है पढ़ना, भारी भारी चीजें। वो पढ़ने का 7:30 बज गए इसलिए बेड में लेट जाने का, और लेटते हुए एकदम भारी भरकम चीजें पढ़ने की ड्रग्स जैसा काम करेगा। तुरंत नींद आ जाएगी। आधे घंटे से ज्यादा तुम जागोगे ना, तुम्हारी आंख में से पानी गिरने लगेगा, नाक में से पानी गिरने लगेगा। अग्री? यस सर। समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ेंगे कैसे? इसलिए अपने आप नींद आ ही जाएगी। नहीं आए ना यस तो पढ़ते रहना, उस पेज को घूरते रहना। कुछ समझ में ना आए तो घूरते रहना उसी पेज को, जब तक नींद ना आए, भले नींद 10 बजे आए। नेक्स्ट थिंग, सो पहला स्टेप समझ में आ गया, अंधेरा रखना है। दूसरा स्टेप, रात को पढ़ना है। थर्ड स्टेप, सुबह जैसे ही तुमको कैसे भी करके किसी को बोलना है, लेट्स से तुम्हें 4 बजे का टाइम सेट करना है। 4 बजे को तुमको किसी को बोल देना है कि भाई तुम 4 बजे मुझे कैसे भी उठा देना। चिल्ला के, पानी डाल के, कैसे भी करके 4 बजे उठा देना। और 4 बजे तुम्हें उठकर 1 लीटर पानी पीना है और 1 या 2 केला खाना है। जैसे ही तुम 1 लीटर पानी पियोगे और 1-2 केला खाओगे, तुम्हें जबरदस्त पॉटी आएगी। तुम पॉटी में भागोगे और तुम्हारा पॉटी हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप है, तुम्हें दिन के दौरान सोना नहीं है। कुछ भी हो जाए, तुम मर जाओ ना तो भी सोने का नहीं है। तुम वॉक पे निकल जाना, लेकिन सोना मत। एंड लास्ट स्टेप, बी एक्टिव। एटलीस्ट 2-3 घंटा दिन में चल लेना। भले तुम रूम में वॉक, वो पॉडकास्ट सुनते हुए चल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन 2-3 घंटे का एक्सरसाइज ले लेना। अगर तुम 4 बजे उठे, अगर तुमने 2-3 घंटे का एक्सरसाइज लिया, अगर तुम दिन भर नहीं सोए,
और अगर रात को रूम में अंधेरा है और तुम रात को पढ़ रहे हो, तुम शर्त लगा लो तुम्हें नींद आ ही जाएगी सेकेंड डे पे। और सर वो 10 to 12 लेक्चर्स होते हैं वो। तुम्हारे जो रात के लेक्चर्स होते हैं वो हाँ रात को 10 से 12 के लेक्चर्स होते हैं। हाँ। सो देन यू फिगर दैट आउट, यू हैव टू समहाउ मैनेज इट कि तुम मतलब किसी और टाइम पे कर लो। हाँ। जल्दी उठना इम्पोर्टेंट है या कम सोना इम्पोर्टेंट है? कम सोना ही नहीं है, कम तो आप सो ही नहीं सकते। आपको not only do you have to sleep 7 hours, but out of those 7 hours at least 6 hours have to be continuous। तुम ऐसा शिफ्ट में नहीं कर सकते कि मैं रात को 3 घंटा सो लूं, दोपहर को 3 घंटा सो लूं। ऐसा नहीं हो सकता। तुमको एटलीस्ट 5-6 घंटे का, तो मिनिमम 5-6 घंटे का एक स्ट्रेट स्लीप चाहिए, मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम। एंड पूरा दिन का तुमको 7-8 घंटे स्लीप चाहिए, दो 7-7.5 घंटे चाहिए ही, वरना तुम जो भी सीख रहे हो वो सब बैठेगा ही नहीं। तो दस और से सर बारह मैंने किसके कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं, किसके लेक्चर्स होते हैं? 10 से 5 होते हैं सर हमारे कॉलेज में तो। 10 से, 5। तो तुमने बोला ना रात को 10 से 12 के लेक्चर। 10 से 12 होते हैं IMS के। हेलो, समझा नहीं मैम। मास्टर क्लासेस हो रहे हैं ना सर अभी रात को 10 to 12। हाँ करेक्ट, हाँ वो आपका मास्टर क्लास हो रहा है, तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है। एक वो मास्टर क्लास का आप रिकॉर्डिंग देखो, और या तो दूसरा सर आपका वो मास्टर क्लास खत्म हो जाए उसके बाद ये शेड्यूल फॉलो करना करो। दोनों कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि वो मास्टर क्लास आपका अगर 12 बजे खत्म होता है, 12 बजे को नींद आ भी गई, जो आएगी ही नहीं, क्योंकि आप क्लास अटेंड करते रहे, आपकी लाइट, आपका स्क्रीन चालू होगा। इसलिए वो अगर क्लास 12 बजे खत्म होता है तो 12:30-1 बजे के पहले नींद आने वाली है नहीं आपको। और अगर वो आप 12:30-1 बजे सोए तो आपको 6 बजे के पहले उठना भी नहीं चाहिए। सही में मिनिमम 5-6 घंटे की तो आपको नींद चाहिए ही चाहिए। सो देन द नेक्स्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज, यू आर लकी कि अभी विंटर आ रहा है वैसे भी, तो आप अपना, हेलो, हाँ सर आप बोल दीजिए। हाँ, तो तुम्हारा क्लास खत्म करो। तुम्हारा अगर इनफ थकान होगा, अगर तुमने दिन का 2-3 घंटा वॉक किया होगा, अगर तुम जल्दी उठे होगे, अगर तुमने शाम के बाद कॉफी, चाय, कोका कोला, कोकेन, कोई भी ऐसा स्टिम्युलेंट नहीं किया होगा, कैफीन, कि जिससे तुम ज्यादा हाइपर हो जाओ, अगर ये सब चीजें नहीं की होगी, और अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ होगा, तो तुम्हारा क्लास खत्म होते ही तुम्हें तुरंत नींद आ ही जाएगी 12-12:30 बजे तक। तुम 12-12:30 बजे सो जाओ, और सुबह 6 से 7 के बीच में लेट से लेट उठ जाना, 7 बजे उठ जाना, लेट से लेट, सुबह 7 बजे। और सर सॉरी, A1 पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। A1 पर एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो 4 बजे सॉरी। उठते हैं, मतलब जो सुबह A1 वेबसाइट पर एक आर्टिकल पढ़ा था हम्म। कि जो सुबह 4 बजे उठते हैं उनका माइंड शार्प मतलब 10 to 11, 10 to 12 के बीच में होता है मतलब। और जो लेट उठते हैं मतलब 8-10 बजे, उनके मतलब शाम के वक्त माइंड ज्यादा हमारे एग्जाम का वो जो स्लॉट मिला सपोज के शाम वाला 4:30 वाला, तो फिर वो शेयर मतलब करो, आठ आर्टिकल बजे वाला देखते ना उठना वो ही क्या लिखा है उसमें, मैं भी समझता हूँ कि क्या लिखा है। वो आर्टिकल मेरे साथ शेयर करो। नहीं सुनाई दे रहा है यार। I can't hear you, Somil. Okay, we'll try to bring somebody else in. नहीं हो रहा ना? Okay. Harshu, eating schedule. Okay, I'll get back. Sakshi, I'm not able to put in hard work for important things. Sakshi, it's really that. Believe me, your brains are not getting enough oxygen, guys. That goes for all of you. आप लोग जो भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपके दिमाग में इनफ ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा। दिमाग में इनफ ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो आपको पता है कि क्या करना है। आपको पता है कि भाई रीडिंग करना है, आपको पता है कि भाई ये करना है, वो करना है। वो करने के लिए आपको मोटिवेशन आएगा नहीं। सो वी आर स्टक इन अ चिकन और एग काइंड ऑफ सिचुएशन, कि सर मोटिवेशन नहीं तो मैं एक्सरसाइज कैसे करूं, एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो मोटिवेशन नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा तो मैं वॉक कैसे करूं। सो समवेयर यू हैव टू ब्रेक द साइकिल। So you have two options: either you keep suffering this cycle or you break this cycle. So you guys are young, you have that option that you can just take the situation by the horns and break that cycle. Like, start exercising more, start walking more, start reading more, start stimulating your brain more, and then
not only will you get enough sleep, तुमको नींद अच्छी आएगी, तुमको नींद आ ही जाएगी, प्लस सुबह तुम उठोगे तो यू विल वेक अप फोकस, ब्रूस ली स्टाइल, वॉक करना है, रीड करना है, ये हॉबी करना है मेरा, ये करना है, वो करना है, एंड यू विल जस्ट नो व्हाट टू डू एंड यू विल स्टार्ट डूइंग इट. Sakshi, you can correct me if I'm wrong, but can I bring you on the call, Sakshi? Let's see. Sakshi, yeah, Sakshi, okay. Let's see. Okay, Sakshi not joining. Anybody else had a question? Yes, Harshu, you're absolutely right. You got the gist of what I was trying to say. Yeah. Harshu, so is your question solved now, Harshu? Just going through your questions. Anybody else? Any other questions? Are we done with the motivation thing? Any other questions related to motivation or not being able to do? दिमाग में इनफ ऑक्सीजन नहीं जाएगा, मोटिवेशन नहीं होगा. एक्सरसाइज नहीं करोगे, दिमाग में इनफ ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं. Brain needs a lot of perfect. Okay, Sakshi. So did I answer your question then? That you have to somehow oxygenate your brain, and once your brain starts getting oxygenated, you will find the motivation to do what you want to do. Hi, Shaunak. Nice seeing you, buddy. We forgot to make a video yesterday, Shaunak. We must. So next time we meet. And today I had a long chat with Lionel, so he's also looking forward to seeing you soon. Any other questions, guys, related to motivation? Cat करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? I think we've discussed all of that. Definitely करना चाहिए. The things that it will prepare you for are amazing. It will really make a soldier out of you. So yeah, definitely cat तो करना ही चाहिए. Any other questions related to motivation? If not, we'll move on to the second topic. The second was how to improve your English. English reading comprehension, English generally, verbal ability कैसे, overall कैसे करना है, etc. So to that, I'll ask you a simple question. I think I asked this before. What's the difference between I need to leave and I need to go? What's the difference between the two? Anyone? Are they both the same? Bhavya, I can bring in, yeah. Yes, guys, anyone? What's the difference between I need to go and I need to leave? I think some of you are Googling it. I hope not. Or you can, why not? Nice. Shaunak, leave is a bit more polite while go is commanding. Okay. Bhavya, hi. Any answer? Hi. What's the difference between I need to go and I need to leave? In I need to go is you want to go somewhere and it is very urgent to go. So you are just like saying that I need to go there and I'm going. And for leaving is more a polite way to talk to someone. Okay, very nice. Yeah, nice. Shaunak said the same thing, that leave is a bit more polite while go is commanding. But I'm not commanding anyone. I'm informing them that I'm going. So commanding is out of the question. Harshu, go means temporary and other one is permanent. Nothing to do with temporary and permanent, I think. Sakshi, go to specific place, whereas leave just this place. But if I just say I need to go, I'm not mentioning any place. So Sakshi, is that incorrect? If I say I need to go and I'm not mentioning any place, is that incorrect? We're waiting for a reply. But yeah, we'll all get different answers. I'll tell you the real answer. I need to leave मतलब मुझे जाना पड़ेगा. I need to go away from this place. मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा. So that is the meaning of I need to leave. I need to go मतलब मुझे toilet जाना है. Number 2. I need to shit. I need to defecate. So that is the meaning of I need to go.
So you must have heard that in India many people still go out in the open. So go out in the open literally means to go toilet. So go has more than 40 meanings. 40-45 से ज्यादा meanings है go के. सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप लोग, एक तो आप लोग को नए वर्ड्स भी सीखने हैं, प्लस आपको एग्जिस्टिंग वर्ड के ज्यादा मतलब भी सीखने हैं. एंड डोंट थिंक इट्स अबाउट कैट. आपको कैट नहीं करना, आपको फ्यूचर में लाइफ में कुछ भी करना है. जैसे मैंने पहले बहुत सारे एग्जांपल्स दिए. आपको शादी.com पे फॉर्म भरना है, आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको पीएचडी रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आपको आपका बैंक में से पैसा गायब हो गया और आपको बैंक को लेटर लिखना है कि भाई मेरा पैसा हैक हो गया. आपको कुछ भी करना है, आपको नया मशीन लेके उसको समझना है, उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ना है, आपको कुछ भी करना है लाइफ में, आपको नया फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, कुछ भी करना है, तो अपने को वो चीज समझना पड़ेगा. और वो चीज समझने के लिए वी नीड अ वेरी बिग ग्रामर एंड वोकेबुलरी. तो वो अगर आप सीखते हो, भले आप कैट के लिए सीखो या नहीं, पर वो आप सीखते हो तो आपको लाइफ में हर जगह काम लगेगा. सो इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. अब आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन खराब होना गारंटीड है, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट आवर टीचर्स प्रोबब्ली डोंट स्पीक करेक्ट इंग्लिश. The celebrities that you listen to, including Amitabh Bachchan, even probably Amir Khan, they don't speak correct English. You talk to your friends, you know your friends speak casual English. It's spoken English. It is not जो passages में आता है formal standard English जो बोलते हैं. Standard नहीं होता ना friends के साथ. So आप मुझे बताओ भव्या कि आप correct English आपको कहाँ सुनने को मिलता है? Only in the podcasts. Correct. Except podcasts और international radio, कहीं से भी आपको करेक्ट नहीं मिल रहा. मतलब जो बंदा पॉडकास्ट भी नहीं सुनता और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस या कोई भी रेडियो स्टेशन भी नहीं सुनता, उसको तो करेक्ट इंग्लिश मिल ही नहीं रहा. आप इंडियन इंग्लिश न्यूज चैनल्स को नहीं गिन सकते, क्योंकि उनका ग्रामर, वोकेबुलरी और प्रोनाउंसिएशन तीनों इंडियन रहेंगे. स्टैंडर्ड इंग्लिश जो बोलते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं होगा. सो आपको करेक्ट इंग्लिश बिल्कुल नहीं मिल रहा. प्लस गलत इंग्लिश हर जगह से मिल रहा है. आप हर जगह जहां से भी सुन लो, आपको गलत इंग्लिश ही मिल रहा है. सो नाउ imagine your situation where for many years, for 10 years, 20 years, right from your kindergarten, right till your PhD, and even when you start working, even your job, your boss, everyone is constantly bombarding you at least 5 hours a day with bad English. 5 hours a day for 20 years. You do the math. 20 years means how many days are we talking about? 7,000 days. 7,000, 8,000 days. 8,000 days multiplied by 5 hours every single day. We are talking about what? 40,000 hours of bad English listening. Bad grammar, bad pronunciation, bad vocabulary, incomplete vocabulary, informal vocabulary, blah, 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 blah. So आप लोग जब इतना सारा गलत इंग्लिश सीख रहे हो, तो ऐसी दुनिया जहां पे सब इंग्लिश में चलता है, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग वर्क्स ऑन इंग्लिश. विकिपीडिया वर्क्स ऑन इंग्लिश, गूगल वर्क्स ऑन इंग्लिश, यू नो दैट राइट? गूगल मैप्स वर्क्स ऑन इंग्लिश, एवरीथिंग. सो जहां सब कुछ इंग्लिश में काम कर रहा है, वहां अगर हमको इतना सारा गलत इंग्लिश बॉम्बार्ड हो रहा है, तो हमारा काम नहीं होगा. चाहे हमको कैट क्लियर करना हो, चाहे हमको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, चाहे हमको बार्गेन करके अच्छी जमीन का सौदा करके अच्छा फ्लैट चाहिए, बैंक से अच्छा लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, जॉब चाहिए, इंटरव्यू में जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वी नीड गुड लैंग्वेज स्किल्स. डू यू अग्री विद दैट? Yes, totally. Right? Totally. So that means from now on, and you can't tell your teachers to shut up, you can't tell your friends to shut up, you can't tell anyone to shut up. So all you can do is, अगर रोज का 4 घंटा गंदा इंग्लिश मिल रहा है, तो अपने सामने 4 से 6 घंटा अच्छा इंग्लिश उसके सामने इनपुट करने का, ताकि वो थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए. So now, does anybody have any questions why we must listen to podcasts and world service news? Anyone, any questions? I don't think. I think it's pretty self-explanatory. इतना सारा गलत इंग्लिश मिल रहा है, तो थोड़ा सही इंग्लिश डालना ही पड़ेगा. Same goes for reading. Reading improves focus. So जो लोग रीड करते हैं, वो एक पूरा लेक्चर समझ पाते हैं, वो एक पूरी चीज समझ पाते हैं. उनको अगर कोई नया, तुमने कोई गिफ्ट दिया ब्लूटूथ स्पीकर, और ब्लूटूथ स्पीकर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वो बंदा पूरा समझ पाएगा. जो लोग रीड करते हैं, उनका थोड़ा मैच्योरिटी होता है, उनके साथ आप बात कर सकते हो. बाकी लोग इतने, मतलब you know, such childish people are there around us who don't read, and it's just so hard to talk to them. It is just so hard to talk to them.
I'll actually give you an example. I'm talking to somebody who's about like 18 or 20 years old, and he or she, whoever, they tell me that humans came from space. So I said, if humans came from space, then why do we have 95% DNA common with monkeys and 90% DNA common with elephants? Elephants and humans are 90% same DNA. In fact, humans and all mammals are almost 90% same DNA, all mammals. So सारे mammals स्पेस में से आए हैं या हम स्पेस में आए हैं, पर कोइंसिडेंटली हमारा डीएनए 90% सबसे मैच हो रहा है इतने सारे लोगों से. तो बोलता है कि everyone cannot know all the answers. No, I said agreed. Everyone cannot know all the answers. Nobody knows all the. वो बात ही कहाँ से है? तुम बोल रहे हो ह्यूमन स्पेस में से आए, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम ये किस बेसिस पे बोल रहे हो. मैं नहीं बोल रहा तुम गलत बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ तुम ये किस बेसिस पे बोल रहे हो, तुमने ये कहाँ पढ़ा. ऑफ कोर्स यूट्यूब वीडियो देखा होगा ऑब्वियसली. हाय वैशु. सो देन ही सेज या तो स्पेस में से आए या तो पानी में से आए. बात ही पूरी चेंज. या तो स्पेस में से आए या तो पानी में से आए. ओके, तो मैंने पूछा अच्छा पानी में से कैसे आए? अगर हम पानी में से आए तो हम पानी में सांस क्यों नहीं ले पाते? तो बोलता है कि ले पाते हैं ना, हम लोग पानी में स्विमिंग तो करते हैं. मैंने बोला मेरे भाई, स्विमिंग हम लोग सांस लेते, फिर अंदर डुबकी लगाते करते, फिर बाहर सांस लेते, फिर अंदर सांस नहीं लेते हम लोग. तो बोलता है कि एक्चुअली आपको पता है ये जितने भी ड्राउनिंग के न्यूज है ना, ये सब फेक न्यूज है. मैं बोला क्या? बोलता है हम ड्राउनिंग से नहीं मरते. मैंने बोला क्या बात कर रहा है, मतलब पानी में डूब के कोई मरता ही नहीं कभी? बोलता है नहीं, सब फेक न्यूज है. तुम देखो बात कहां से कहां जा रही है. पहले बात हो रही है ह्यूमन स्पेस में से आए, फिर वो मैं बात कर समझने की ट्राई कर रहा हूं तो बोल रहा है नहीं ह्यूमंस पानी से आए. फिर वो मैं समझ रहा हूं तो बोलते नहीं हम पानी में डूबते नहीं है. मैंने बोला मेरे भाई चल अभी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जिसको तैरना नहीं आता उसको बुलाते, उसको पानी के अंदर डालते, देखते डूबता है कि नहीं डूबता. बोलता है हाँ पर तुरंत थोड़ी डूबेगा. अच्छा अब बात तुरंत डूबने पे आ गई. मैं बोला यार. बोलता है कई लोग तो आधा घंटा भी नहीं डूबते. मैंने बोला पहले तो आधा घंटा तो कोई सांस रोक ही नहीं पाता. दूसरा आधे घंटे के बाद भी डूब गया तो भी मछली तो पूरी जिंदगी जिंदा रहती है. अगर मछली पानी में से आई और वो मछली पानी में पूरी जिंदगी रह सकती है तो हम पानी में से हम पूरी जिंदगी क्यों नहीं रह सकते? तो बोलता है तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि या तो पानी में से आए या स्पेस में से आए. ओ माय गॉड. ऑब्वियसली बंदे ने अपनी जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी, एक किताब नहीं पढ़ी उसने. मैं गारंटी के साथ बता सकता, बंदे के साथ तुम बात ही नहीं कर सकते, उसके साथ बात करना इम्पॉसिबल है. मतलब क्वालिफिकेशन है, आई एम श्योर उसका कॉलेज की डिग्री वगैरह होगा, वो सबके पास होता है, बट यू कैन नॉट टॉक टू दीज पीपल. सो दीज पीपल, मेरे को नहीं बात करनी, लेकिन उनको लाइफ में उन्होंने कुछ भी सोचा होगा ना कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करनी है, मुझे इस इंसान से शादी करनी है, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये बिजनेस चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, मुझे मेरे माँ बाप के लिए मर्सिडीज चाहिए, कुछ भी वो बंदा वो कर ही नहीं पाएगा. उसको लाइफ में कुछ जो भी चाहिए वो मिलने का चांस बहुत कम है, अनलेस कि उसका नसीब बहुत अच्छा हो. एवरी डे उसको लाइफ में मिलने का चांस बहुत ही कम है कुछ भी. You see what I'm trying to say? Because reading is important. So you have to read, you have to listen. To improve your English, I have already given you a plan. Try to follow it as much as you can. अगर आपके क्लासेस वगैरह आते हैं तो उसको मुझे फोन करो, हम लोग फोन पे बात कर लेते हैं अलग से, and I'll be able to make up a plan for you separately. So anybody else with help with English, follow that plan and call me and talk to me separately if you can't follow that plan. Plus, if you are in that WhatsApp group, sorry, one more thing. If you're in that WhatsApp group, start sending me a one-page write-up on that topic which I have told you. My favorite spot in my house. So आपका writing देख के मुझे काफी पता चलेगा आपका लेवल एग्जैक्टली क्या है और मैं आपको कौन से बुक्स कौन सा एक्सेट्रा मटेरियल रेकमेंड कर सकता हूँ. यस भव्या प्लीज. And also, if we, talk to, means normal casual talk with people like our friends or anyone. So if that also we do in English and we try to improve each other's English and it is also it should be taken in a positive way. So Good point. it can also help. Good point. You're right. The question is the balance is between fluency and accuracy. So what will happen is that the more you talk, the more fluent you will become.
but your accuracy will remain low because you are speaking wrong and you are repeating wrong things. So because you are repeating wrong, your English will remain wrong. Whatever you are saying, if there are grammatical mistakes in there, those mistakes you will keep repeating those mistakes. So your confidence will go up. I can talk in English. I always talk to my friends in English. We always talk in English. We plan dinners in English. We plan movie. We do everything in English. But it may not be English. It may be a Hindi translation. Like if we could actually record, or when we look at those writing samples, I'll show you. दिखता है clearly कि ये हिंदी का translation है English में, ये standard English नहीं है. जो आपका passages वगैरह होता है वो सब अलग है. So if I were in your place, if I were in your place, I would only talk about things I hear on these international podcasts and radio. So if you hear about the Russian-Belarus election, then talk only about Russian-Belarus elections. So first of all, you will only talk to intelligent people. So जिन लोग को वो पता है उसी के साथ बात करोगे. जिन लोग को बर्गर के सिवा कुछ पता ही नहीं है उसके साथ तो तुम वो बात कर ही नहीं सकते. पहली बात. You see what I'm trying to tell you? People who are trying to gossip, you can't discuss politics with gossip mongers. You can't talk anything. उनके साथ तुम झगड़ा ही कर सकते हो, या तो आर्ग्यू कर सकते हो, या तो चैट कर सकते हो. पर जिन लोग को लाइफ में किसी चीज में दुनिया में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके साथ, जो तुम्हारी तरह पॉडकास्ट नहीं सुन रहे, रेडियो नहीं सुन रहे, उनके साथ तुम बात नहीं कर सकते. सो एवरी इवनिंग इफ यू वांट यू कैन गिव मी अ कॉल. वी कैन हैव अ 5-10 मिनट चैट. आई हैव इट विद ऑल माय स्टूडेंट्स जो लोग पॉडकास्ट सुनते हैं. एंड वी डिस्कस न्यूज एंड वर्ल्ड अफेयर्स. वी डिस्कस साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस. ये बातें करते हैं. तो उससे क्या है कि भले आपका गलत ग्रामर प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपका वोकैबुलरी और जीके तो सुधर रहा है. बट इफ यू टॉक टू योर रेगुलर फ्रेंड्स एंड यू टॉक रेगुलर टॉपिक्स and you talk in regular English, then your English will keep worsening. Then speaking is not a good idea. Yeah, Does that make sense? of course. So talk, but you can't change your grammar overnight. But what you can change is you can change your topics overnight. तुम जिस topics पे बात कर रहे हो, जिस vocabulary की बात कर रहे हो, you're talking about elections, you're talking about vote rigging, you are talking about fake voting by mail, you are talking about gerrymandering, I don't know, you are even probably talking about filibustering, you are probably talking about zoning. तुम समझ लो ना, मतलब ये सब अपने आप वो तुम्हारा कैलिबर इंप्रूव हो जाता है. नेक्स्ट टाइम तुम्हारा पैसेज आया अगर इलेक्शन का, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, हाँ इलेक्शन के बारे में तो मैंने बहुत बातें की है. और उसके अंदर अगर वर्ड आ गया जेरीमैंडर, तो तुमको कितना प्राउड फील होगा कि वाह वे मेरे को जेरीमैंडर पता है. अभी तुमको लगेगा जेरीमैंडर क्या होता है, बट अगर तुमको वर्ड पता भी और वही वर्ड पैसेज में आ गया, यू विल बी सो ओवर द मून के वाओ वाओ मुझे पता है. सो बोलो, लेकिन चेंज योर कंपनी और चेंज योर टॉपिक्स. Change the topics that you talk about. Your grammar will change only slowly. So at least तब तक तुम्हारा भले गलत ग्रामर रिवाइज हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट करेक्ट जीके भी तो रिवाइज हो रहा है साथ में. Yes, sir, definitely. Sir, But yeah, I have my class at 7 and I am a little late. you carry on. Yeah, I'm so sorry. I shouldn't have kept you. Yeah, you should have said, I'm so sorry. I keep talking. But yeah, see you soon, Bhavya. We can talk later. Yes, sir. Okay. Okay, fine. So we've taken care of how to improve language. You have to read a lot. You have to listen a lot. We have spoken about how to stay motivated. Sakshi, you are wrong that Elon doesn't exercise. We'll talk about this separately, but he does. Plus, he's always on his feet. You will hardly see him sitting. So not sitting is a kind of exercise. Okay. Lastly, we'll come down to foreign languages. So somebody wants to speak Japanese. So gambatte kudasai. Somebody wants to learn Korean. I'm very happy. Are those people still here? People who wanted to learn Japanese, Korean, foreign languages and wanted some tips on how to learn a foreign language? Is there anybody here who was interested in learning a foreign language? Are they still here? There were inquiries about Japanese, Korean, and generally, I mean, anybody here interested in arigato gozaimasu, arigato, or is it? Yeah, it's evening, isn't it? So it's konbanwa, konbanwa bundusa, o genki desu ka? Yogen desu, anata wa no sensei desu, ne? Kyou wa kindo nichiyobi desu ka? No? Iie, nichiyobi de wa arimasen.
So what can I tell you? I learned Japanese on my own, of course, like all the languages, whatever other languages I know, I learned all of them on my own. Uh, Once hi, so ですね、hi です。hi yes です。日本語で yes は hi です。hi, yes。いいえ no ですね。はい。सो हाँ वो मतलब मैं तो जितने भी लैंग्वेजेस सीखता गया अपने आप ही सीखता गया और वंस आई स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेजेस आई स्टार्ट मीटिंग पीपल हु नो दोज लैंग्वेजेस एयरपोर्ट पे कोई मिल जाता है कहीं कहीं और कोई फेसबुक में दिख जाता है कहीं ना कोई लोग दिखने लगते हैं और फिर वो चीज इंप्रूव होने लगती है बट द फर्स्ट हार्ड वर्क आई पुट इन माई सेल्फ आई मेरे जापानीज के पूरे बुक्स भर गए वो एक्चुअली लिखते हुए हिरागाना लिखते हुए काताकाना लिखते हुए कांजी तक तो मैं पहुंच नहीं पाया बट हिरागाना एंड काताकाना लिख लिख के मैंने पूरे के पूरे बुक्स भर दिए ताकि मैं थोड़ा कॉमिक्स पढ़ सकूं थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ सकूं बोलने में मिरर के सामने जोर जोर से बोलने में मैंने घंटों निकाल दिए सुनने में of course I started learning many years ago but whenever I start learning something I don't care how long it will take in fact I know exactly how long it will take I follow the schedule so I like to think of myself as very programmable very coachable मैं कोई चीज सोच लूं कि ये चीज करनी है फिर बस वही पता लगाना है कैसे करना है और उसको करना है और कुछ बीच में होता ही नहीं है कि यार पर करना है पता है क्या करना है पर हो नहीं पा रहा है वो स्टेज ही नहीं आता बिकॉज आई ईट राइट ब्रीद राइट एक्सरसाइज अलॉट या जस्ट दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा होता है यार मैं क्या बताऊं यू हैव टू मेडिटेट अ लिटिल बिट यू हैव टू गेट प्लग्ड इनटू द मैट्रिक्स कि कुछ भी करना है yep no problem देवा आरिमासेन दाइजोबु देस दाइजोबु वा ओके देस good this. So anyway, I don't want to keep mixing my Japanese and Korean and French and all of those things here. But you can learn languages. And I'm not even mentioning computer languages. I know right now also, I think I can manage at least half a dozen to a dozen computer languages, C, Java, whatever you call it. So human languages, computer languages, music languages, languages upon languages. What does it even matter? So कुछ भी होता है वो आप मास्टर कर सकते हो you need a lot of discipline you need to allocate time to that thing there are a lot of free podcasts available there is japanesepod101.com there are a lot of free lessons available books available trace sheets available you just need to give in the hours the golden rule is 10,000 hours if you put in 10,000 hours into anything you become the master of that thing whether it is cat whether it is your degree whether it is a piano whether it is Japanese whether it is French whether it is whatever uh, your disease आपको अपने disease को मिटाना है कुछ भी करना है आपको लाइफ में कुछ भी करना है 10,000 hours is the rule of course 10,000 hours को तो बहुत टाइम लगता है but those 10,000 hours are made of 1 hours 2 hours 1 hours 2 hours every day so अगर मैं आज से let's say कोरियन सीखना शुरू करता हूँ I will make sure that every day कभी अगर 20 मिनट भी हो गया तो चलेगा बट एवरी डे में 1 घंटा आधा घंटा रोज दूंगा एंड वेरी सून इन 1 month इन 2 months इवन इन 1 week आई विल बी flying I'll be just flying so yeah you just have to be consistent workout करना हो सीखना हो foreign language हो dance हो bungee jumping हो scuba diving हो base jumping हो कुछ भी हो you just have to put in the years sir can you suggest books which you use as reference learning through watching anime and reading manga since last 6-7 years books don't help much Bunda I wouldn't recommend any books whatsoever what you should do is you should go online and you should search for katakana trace sheets and you should search for hiragana trace sheets so those katakana and hiragana trace sheets will give you trace वो trace करके शुरू करके लिखना शुरू कर दो और या तो सीधा नोटबुक में देख के लिखना शुरू कर दो so just start writing hiragana and katakana जब तुम्हारे वो 100 पेजेस वाले बुक्स के बुक्स भर जाने चाहिए सिर्फ आ आ आ आ आ you just keep writing then e u a o ka ki ku ke ko ta si su te to sa shi su se so ha hi hu he ho rari ru re ro you get the idea so all the sounds of Japanese the alphabets you start just writing them like mad so then you will start feeling confident you start reading small sentences and you get you just message me on WhatsApp I'll send that to you you get these podcasts with transcripts so you can hear and I mean listen and read at the same time and when you listen and read then you start working on your pronunciation you start memorizing entire phrases first so